Hello everyone, a very heartfelt welcome to my channel. So today's topic is going to be what is coming next in my love life. ये आपके बारे में है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या नया होने वाला है मेनली आपकी लव लाइफ पे. आज मैं जो पाइल चूज़ करने के लिए आप लोगों को दूंगी वहाँ पे भी सफल करूँगी. दैट विल बी वेरी रैंडम सो दैट द एनर्जी विल बी हाई एंड वी गेट एन एक्यूरेट आंसर्स. So I'll be shuffling this major arcana of 22 cards. Out of this, I'll be selecting 3 cards as today's 3 piles. Even I'll not look into it, and at the end of every pile's reading, I'll turn the card upside down and then we'll see the final result. All right, so let me get 3 piles for today. All right, too much cards. I'll not accept this message. I need only 3 piles to come in front of me. All right, pile number 1. Pile number 2. And pile number 3 is about to come. So this is pile number 3. All right, so this is pile number 1, pile number 2, pile number 3. In fact, I myself don't know that which pile contains which message. Just from your own intuition you choose your own pile. This pile number 1, pile number 2, pile number 3. जो भी आपको लग रहा है कि मुझे चूज़ करना चाहिए, you can choose. So here I'm going to give you 10 seconds screenshot so that you can take your time, call your intuition and select your pile. All right, pile number 1. So let me first shuffle your cards from the minor arcana, okay, and we'll continue your reading. What your new message is coming in your way in your love life? What is the new message coming in your pile number 1's life? What is the new message in love life coming in pile number 1's life? What is the new sorry. I am not cutting my video out so that you guys can feel authentic, that I am authentically shuffling for you and the energy is real. Okay, so what is coming next in pile number 1's love life? Give me some cards. Okay, so King of Cups, wise, balanced emotion. Okay, wise, जो भी है वो wise लग रहे हैं मुझे. Let me shuffle some more cards. Queen of Wands, confident, inspiring. ओके, काफ़ी अच्छे एनर्जीज आ रहे हैं.
Let me find out some more cards. My goodness, these are 3 cards altogether has come. King of Swords, logical, discipline, truth. Okay. Knight of Swords, bold, rushing. Okay, and Page of Swords, curious, learning. काफ़ी इंटेलेक्चुअल एनर्जी आ रहा है मुझे, ये पता नहीं क्यों. विल डाइव डिप इनटू दिस. ओके, कोइंसिडेंटली इतने सारे कार्ड्स पुल हुए जहाँ पे मैक्सिमम किंग, क्वींस, नाइट्स, किंग टाइप की ही एनर्जी ज़्यादा दिखने को मिल रहा है. सो आई फील कि दिस सजेस्ट जो लोग हैं उनकी पर्सनालिटी और डायनामिक्स आर गोइंग टू प्ले ह्यूज वाइटल रोल इन योर लव लाइफ, इन योर नेक्स्ट लव लाइफ. ओके, फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ कप्स, ये शो करता है इमोशनल मैच्योरिटी. ओके, कि आप शायद खुद अभी वो स्टेज में हो जहाँ पे आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो चुके हो एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ओनली सच पर्सनालिटीज़ जिनको इमोशनल मैच्योरिटी है, जो कंपैशन है, जो खुद स्टीडी रहना पसंद करते हैं, ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं एंड दूसरों को भी वो एनर्जी फील होने को देते हैं. आई फील लाइक यू विल स्टेप इनटू अ मोर काम, more emotionally balanced phase where you attract people who respects your feeling, जो बहुत ज़रूरी होती है एक लव लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, because love life plays the 80 to 90% role in our lives, in everyday's lives. अगर वो पर्सन जिसके साथ आप अपना 75% ऑफ लाइफ बिताने वाले हो, वो पर्सन अगर इमोशनली मैच्योर होता है तो समझ जाओ आपकी लॉटरी लग गई. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. ओके, कोई केओस नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई बच्चों वाली हरकतें नहीं हो रही, कोई बच्चों वाली बातें नहीं हो रही है. कम्प्लीटली एक मैच्योर पर्सन. ये एक ऐसा पर्सन है जिनको ब्रेन और हार्ट बोलते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों से ये इंसान बहुत स्टेबल होंगे. और जिनका दिल और दिमाग दोनों स्टेबल होते हैं उनकी इमोशनल कोशेंट बहुत सही होता है. वो पर्सन खुद भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं और जो उनके कनेक्शन में आता है उनके साथ भी एक हेल्दी कनेक्शन बनाए रखना ही पसंद करते हैं. And I feel like you have the same kind of energy. You have something kind of magnetic, attractive energy. आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे, जिसके वजह से आप किसी को चेज नहीं कर रहे हो. ऑलराइट, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत चेयरफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो. अपने आप को लेके, अपने लुक को लेके हो, चाहे आपके करियर को लेके हो, चाहे जो भी आपका लाइफ है, आप अपने आप को बहुत खुश रखते हो. यू लव योर सेल्फ, यू गिव लव टू योर सेल्फ. और जो चीज़ एक इमोशनली बैलेंस इंसान को सही में पसंद ही आएगा. जो पर्सन इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे वो क्या बोलेंगे कि ये पर्सन सो फुल ऑफ देमसेल्फ, ये पर्सन बहुत सेल्फिश है. लेकिन जो एक्चुअली इमोशनल क्वेश्चन वाला पर्सन होता है, जिनको सही में पता होता है कि इमोशंस का रिस्पेक्ट देना आता है, वो पर्सन को आप इसीलिए ही पसंद आओगे कि आप आपकी बहुत फेवरेट हो. आप अपने आप को सरप्राइज देते हो, गिफ्ट्स देते हो. यू नो हाउ टू डिलाइट योर सेल्फ. और ये चीज़ की वजह से आप खुद अपने आप में फुलफिल हो, आप 10 on 10 हो. आप इसलिए अट्रैक्टिव लगते हो. लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं. जो पर्सन है, जो न्यू लव है आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले हैं, आई थिंक दे हैव बीन ऑलरेडी ऑब्जर्विंग यू एंड दे काइंड ऑफ लाइकिंग योर एनर्जी. मुझे लगता है आप दोनों में से जिनका भी जोडिएक हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे क्या एनर्जी फील हो रही है. आई फील लाइक वन ऑफ यू इज़ आइदर पाइसेस, एक्वेरियस, एरिस, कैप्रिकॉर्न और टॉरस में भी, जेमिनाई भी हो सकते हैं. सो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जीज हियर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं.
हो सकता है सोशल मीडिया में आपको देख रहे हो या आपको क्लोजली जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट पर्सन इज़ क्यूरियस अबाउट यू, और क्यूरियस होने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत खुद को रोक के भी रखे हुए, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट फुल्ली हैव नो यू टिल येट। वो इसलिए बहुत स्टीडीली टैक्टफुली वो आपके तरफ आ रहे हैं। शायद आप उन जिस पर्सन से आप शायद कहीं ना कहीं बात भी कर रहे हो सकता है आपको भी शायद अंदाज़ा हो रहा है कि मे बी दिस इज़ द पर्सन, ओके। और दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, आई एम टेलिंग यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो एक इमोशनल मैच्योरिटी वाला इंसान है, बहुत ग्राउंडेड नेचर की है, उनके स्टीडी इमोशंस है। ही नोज हाउ टू बैलेंस इन बिटवीन डील और दिमाग, एंड दैट पर्सन directly proportional to intellectuality, though the person is very intellectual. And once he finds out complete information about you, जैसे ही उनको सब चीज़ें आपके बारे में पता चल जाएगी, that person will not take long to move forward, क्योंकि ये पर्सन को पता है कब जल्दी करना ज़रूरी है और ये भी पता है कि कब जल्दी नहीं करना रहता है, कब रुकना है, कब चलना है। इनको बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज एज यू नो ये पर्सन काफ़ी टेक्टफुली आपके सामने आपके पास आ रहे हैं, और उनका जो मूव टूवर्ड्स यू होगा वो ऑलवेज सडन हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट पर्सन विल मूव टूवर्ड्स यू, विल कम टूवर्ड्स यू अनएक्सपेक्टेडली, इन अनएक्सपेक्टेड वेज, कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। शायद आप ऐसे रहेंगे क्या यार बहुत टाइम हो गया, वो तो मुझे अप्रोच भी नहीं किया अभी तक, बट ऑलवेज सडन थिंग्स विल चेंज। दैट पर्सन विल अपीयर एंड विल कन्फेस, और जो भी वो फील कर रहे हैं आपसे बात करेंगे या आपको बोलेंगे बी माई फ्रेंड, जो भी है, मतलब इस पर्सन का जो भी मोटिव्स है आपको लेके, वो बहुत जल्दी आपके सामने खोलेंगे। बस उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए है आपके बारे में, एंड दैट पर्सन इज़ ऑलमोस्ट एक्वायरिंग, ऑलमोस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। और आप अभी ऐसे एक फेज़ में हो जहाँ मुझे लगता है यू आर सो डन विद द गेम्स ऑफ लव। आपके लिए ऐसा है कि बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इन टू सम काइंड ऑफ लव गेम्स हेयर, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर दिस थॉट। देयरफॉर आप लोगों के बीच बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस ग्रो होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू ही आप भी इस पर्सन को जान पाएंगे, एंड वो पर्सन भी आपको जान पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो देख रहे हो आप एक फ़ीमेल हो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेल एनर्जी इन दिस रीडिंग, इन दिस पाइल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फीमेल हो, ओके। और आप एक ऐसी फीमेल हो जिनको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज यू हैव योर ओन स्टैंडर्ड्स। आपको चीज़ें ऐसे ही बस पसंद नहीं आती है, चीज़ें नीड टू बी एक्चुअली गुड टू बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, और वो चीज़ इस पर्सन को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि यू आर ए हाई वैल्यू ह्यूमन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हो अभी, अब जो व्यूअर हो, आप एक फीमेल हो, और एंड यू आर taking a reading about a male interest in your life, and that person is very interesting person. उनकी पर्सनालिटी, उनकी विजडम, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी डायनामिक्स फॉर लाइफ, फिलोसफी फॉर लाइफ्स आर वेरी वेल ओरिएंटेड। that person himself has a high value, high standard for his life, and that's why he knows how to treat his lady. And you guys are the perfect, I mean look at this, ये दोनों कार्ड साथ में आया था, किंग एंड क्वीन, completely masculine energy and completely feminine energy. इस पर्सन बहुत वाइज है, नॉट ओनली इन इमोशनल मैटर, या तो फिर सिर्फ लव लाइफ में ही वो वाइज नहीं दिख रहे हैं। दैट पर्सन इज़ वेरी goal oriented, or I would say very wise in terms of career, in terms of finance. वो बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं। That person is a born leader,
ओके। इनके पास लॉजिकल डिसीजन लेने का पावर होते हैं, बहुत लॉजिकली एनालिटिकली वो सोचते हैं, और वो जब भी लीड करते हैं ही ऑलवेज लीड्स विथ एम्पैथी। ओके, उनको हार्मनी पसंद है। कि होता है ना, जब एक किंग अपने पैलेस में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रजाएं रहते हैं, बहुत लोगों को कुछ कंप्लेंट्स करने रहते हैं, बहुत लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने रहते हैं, बट लेकिन वही किंग को सब लोग पसंद करते हैं जिनके आते ही वो रूम की एक काम एनर्जी फील होती है। लोग वेट करते हैं, उनकी राह देखते हैं कि ये पर्सन आएंगे जो आके वो जो लीड करेंगे, जो डिसीजन देंगे, वो डिसीजन का लोग वेट करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी लॉजिकल एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन, और जिसके वजह से लोग उनको पसंद करते हैं एज ए लीडर। ऑल्सो with logical decision, that person doesn't sugarcoat the facts। जो फैक्ट होता है वो उनको बोलने में कुछ शर्म नहीं आता। दैट पर्सन इज सो ब्लंट व्हेन गिविंग देयर ओपिनियंस। जहाँ उनको लगता है कि मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट करना चाहिए, वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं। एंड दैट पर्सन, इसीलिए उनको ऑब्जेक्शन होती है बिकॉज सामने वाला इंसान अगर कुछ इधर उधर करे तो ये इंसान को समझ में आता है कि मुझे तो यहाँ पे कोई लॉजिकल रीज़न तो दिख नहीं रहा जो तुम बता रहे हो। दैट्स वाई दिस पर्सन चूजेस फैक्ट्स। वो फैक्ट बोलते हैं। दैट्स वाई दैट पर्सन साउंड्स ब्लंट, बट ब्लंट पर्सन हमेशा फैक्ट पे ही बात करते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। दैट पर्सन डजंट सुगरकोट एनीथिंग। सो मुझे लगता है आप दोनों के बीच बहुत सही क्लियर कम्युनिकेशन होंगे, बिकॉज यू आर अ वेरी हाई स्टैंडर्ड वुमेन एंड दिस पर्सन हैज़ हाई वैल्यूज़ अबाउट देयर ओन लाइफ, अबाउट देयर ओन फिलोसफी, और उनको जो फील होती है वो वही आपके सामने आके रखेंगे। कोई जोर ज़बरदस्ती का झूठे वादे, झूठे बात करके आपको फुसलाने की, बहलाने की वो नीड नहीं समझते, बिकॉज ऐसा कर लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म पे कुछ रिजल्ट नहीं देता है। दैट दिस पर्सन हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट सिचुएशन। ओके, बस वो थोड़ा सा अभी हेजिटेशन फेज पे है, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि वो अभी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास उनको ऐसा नहीं लगता कि उनको फुल अथॉरिटी आ गई है कि आपके साथ वो फुल ऑन कन्वर्सेशन पे जाए, इसीलिए वो चीज़ें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ही इज़ फोकसिंग ऑन द डिटेल्स कि मैं कि आप ऐसे हो, आपको ये पसंद है, आपको अप्रोच करने का तरीका ये है, यू आर अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, आपकी अपनी चॉइसेस है, आप खुद को इतना प्यार से रखते हो, तो सामने वाला इंसान की और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको कैसे खुद खुश रखे। उसके लिए दिस पर्सन काइंड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, और जब तक कम्प्लीटली आपके बारे में जान नहीं ले तो ये पर्सन अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे आपको अप्रोच करने के लिए। दैट्स वाई ही इज़ अ बिट फियरिंग यू राइट नाउ। लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू दैट वंस एवरीथिंग इज क्लियर इन हिज माइंड ही विल जस्ट टेक द अप्रोच, ही विल जस्ट अप्रोच यू। This person is curious. This person, I feel, he is asking questions to the mutual friends between you and him, या तो फिर आपको जो जो लोग जानते हैं उन लोगों के साथ भी ये कनेक्ट होकर आपके बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन सिम्स वेरी क्यूरियस अबाउट यू। और ये जो क्यूरियोसिटी है, जो आपके बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर लोगों से पूछ रहे हैं, समझ जाओ यही इनकी एक्शन हो रही है कि आपके ज़िंदगी में आने के लिए वो ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। ही इज़ ऑलरेडी इन हिज मूव, ही इज़ ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स यू। यही तो है कि मूविंग टूवर्ड्स यू का मतलब सीधा आपके पास आ जाना थोड़ी होता है। ऐसा है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आपके बारे में
खोजबीन कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपके बारे में, तरह तरह की आपको लेकर जितने उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं, आपकी और उनके बीच का जो म्यूचुअल लोग हैं उन लोगों से मिल के जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मूव। ऐसे ही तो वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही तो उसको समझ में आएगा, और जैसे ही उनके लिए सारे बातें इकट्ठा हो जाएंगे कि हाँ इस पर्सन को अप्रोच करने का ये सही वक्त है, जब ही उनको लगेगा दे विल जस्ट come towards you and will be in a shock state, like I didn't expect this person to come towards me like this. But yeah, you will also enjoy this connection, I feel. So now it's time to finally open up our this card. This is the final answer of the whole scenario, कि अभी तक तो हमको पता चल रहा है कि पर्सन जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, इमोशनली अवेलेबल पर्सन है, बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बॉर्न लीडर है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, एंड यू आर समवन हु ऑल्सो हैव हाई वैल्यू, हाई स्टैंडर्ड्स, काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी, एंड दे आर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू, राइट? They will take move, but before that they are just trying their best to not to do anything wrong, so that they are taking steps towards you very cautiously. So finally it's time to open up our this final card. It will contain the final message. The Chariot. Oh my god, this changes the whole perception of this reading. I feel कि ये लव, दिस न्यू लव आपके ज़िंदगी में एंटर होगा कि नहीं, ये चीज़ विल बी डिसाइडेड बाय यू. सो यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस कनेक्शन. आप डिसाइड करोगे कि ये पर्सन को, दिस न्यू लव को मैं अपने ज़िंदगी में एंट्री देने वाली हूँ कि नहीं. आप बस ऐसे ही बस आपको प्रपोजल आ गया, या आपको आके किसी ने बोले कि आई लाइक यू, और आप ऐसे ही बस बह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. एज आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ. सो यू विल थिंक लॉजिकली, पैशनेटली, दिल से, दिमाग से. आप भी सोचोगे दिल और दिमाग से, एक बार लॉजिकली सोचोगे, एक बार पैशनेटली सोचोगे, और सोचने के बाद यू विल डिसाइड कि वेदर यू वांट दिस लव टू एंटर इन योर लाइफ और नॉट. And I feel like this connection, you have met this connection while traveling, or maybe a long distance connection है जो अभी आपके पास आ रहे हैं. आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ दैट एनर्जी, कि हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हो, या तो फिर वो पर्सन जहाँ रहते हैं आप वहीं पे घूमने गए थे और वहीं पे उनके साथ आपका मिलना हो गया, या तो फिर वो पर्सन बहुत दूर रहते हैं आपसे और वो आपके शहर में घूमने आया था. सो यू गट कनेक्शन, यू गट टू मीट ईच अदर. मे बी इस तरह के सिनारियो क्रिएट होंगे. ओके, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स things will start sparkling, and you are now not someone who is looking for a puppy love. आप खुद अभी इतनी मैच्योर हो कि आप बस ऐसा ही नहीं कि हाँ बस प्यार हो रहा है, ऐसा सिचुएशन पे आप अभी नहीं हो. यू विल चूज दिस कनेक्शन कॉन्शियसली. आप कॉन्शियस माइंडेड हो के यू विल डिसाइड वेदर यू वांट दिस रिलेशनशिप और नॉट. तो कम्प्लीटली आपके हाथ में है वेदर यू विल वांट दिस कनेक्शन टू एंटर इन योर लाइफ और नॉट. बाकी आई हैव गिवन यू अ scenario or a theme of that new connection, that how is that person is, कैसे होंगे, तो that's now completely up to you. as I have told you that कि आप खुद को गिफ्ट करने वाले इंसान हो. यू हैव योर हाई स्टैंडर्ड्स, यू हैव रेज्ड योर ओन बार्स. सो ऑब्वियसली जब लव लाइफ की बात होगी, डिसीजन की बात होगी, तो यू विल टेक योर ओन डिसीजन, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली रेस्पेक्ट बाय दिस पर्सन. इफ दैट पर्सन इज मैच्योर एनफ, they have no issue when you choose what is good for you, because that person understands, and maybe that person already likes your this quality. All right, so I think I have given you the overall scenario. Only take this message if it resonates with you.
और आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, देन प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई डू पर्सनल रीडिंग्स. यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर आई हैव शेयर्ड माई ऑफिशियल email ID and also my WhatsApp number. You can contact me on there for your personal readings. So thank you once again for coming into my channel. See you in my next video. Thank you. Hello, pile number 2. So I myself don't know what is this card carrying the final message. We'll look at this card at the last of this reading. So let me shuffle cards from my minor arcana. I'll not cut the shuffling part because I want to look authentic to my viewers, so that you guys can see that from the shuffling only I am picking the random cards. Okay, so here goes the shuffling. All right, 10 of cups, family happiness, joy. Okay, what is new coming in love life of pile number 2? What is new coming in love life of pile number 2? What is the new message for love life in pile number 2 is coming? Here, 3 of swords, heartbroken, sorrow. Okay. Sorry, my mistake. All right, 5 of cups, and then one more card. Let me pull Queen of Wands. मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल्स या कुछ हार्ट ब्रेकिंग कुछ सिचुएशन हुआ हो, लेकिन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बिसाइड यू, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो पा रहे हो, या दैट पर्सन I'll go into that matter deep. Let me shuffle one last card. So here comes 2 of swords, indecision, stuck. Okay, I feel होता है ना कि आपको एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एक दिन देखने को बहुत मन कर रहा हो सकता है आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ डायनामिक हो जो बहुत खुश मिजाज है, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी काफ़ी क्योटिक हो रखी है. सो कहीं ना कहीं यू विश कि मतलब एक दिन मेरी भी ज़िंदगी मेरी फैमिली की तरह ही फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉयस हो जाएगा. दिस इज़ अ ड्रीम लाइफ ऑफ योर विजन. आप ऐसा कुछ विजन करते हो, आप ऐसा कुछ चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसा ही खुश मिजाज वाली एक परिवार में तब्दील हो जाए, ऐसा हो मेरी ज़िंदगी. एंड आई थिंक आपका कुछ इमोशनल पेन हो रखे है, या यू आर गोइंग थ्रू सम पास्ट वॉन्ट्स जो फिर से अभी रिसर्फेस हो रहा हो सकता है कुछ आप एक बहुत सुंदर सी ज़िंदगी इमेजिनेशन कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन
that doesn't seem to happen anymore because maybe due to some obstacles or kind of a third party energy, या तो फिर आपका कोई पुराना कुछ इमोशनल दुख हो, जो हार्ट ब्रेक हो, जो पुरानी कुछ पास्ट से जो फिर से रिसर्फेस हो रहा हो, या तो फिर आप उससे अभी भी जूझ रहे हो. All right, so this something kind of scenario I'm getting here, but the good news is, the good part is you are starting to move on. Okay, you seem to healing yourself. The healing is beginning. All right, मुझे लगता है you are feeling like that I have had enough of this heartbreak. मैंने उम्मीद तो रखी थी ऐसा ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ. काफ़ी मुझे तकलीफ़ें मिली बिकॉज़ मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी एंड आई कुडंट मीट माई एक्सपेक्टेशंस. सो आपको काफ़ी दुख हुआ होगा पास्ट में, और यू मे बी गोइंग थ्रू राइट नाउ, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर रेडी टू मूव ऑन. आप अपनी ग्रीफ से बाहर आना चाहते हो. यू आर ऑलरेडी कमिंग आउट ऑफ योर दैट सैड जोन. ओके, you seem to moving on. You are seeing hope again. आपको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी इतने में ख़त्म नहीं हो जाती, इसके आगे और है. द लाइफ नेवर स्टॉप्स गिविंग अस सरप्राइजेस. आप इस थॉट में बिलीव रख के आप फिर से ज़िंदगी को एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे यू सीम टू बी हीलिंग योर सेल्फ. You are trying to release your mind from those past pain, जो बहुत अच्छी बात है for your future. Just because you have not completely moved on, आप क्योंकि अभी बस शुरुआती स्टेज में ही हो खुद को मूव ऑन करने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो खुद को फिर से जगाने के लिए, खुश रखने के लिए. समवेयर दैट्स वाई यू स्टिल हैव द इनसिक्योरिटी और यू आर नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट द लव अगेन. होता है ना, हम जब हमारे साथ कुछ चीज़ें हो जाती है उसके बाद हमको लगता है कि वी नीड सम ब्रेक, और ये खुद अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस होता है. आपको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मूविंग ऑन और हील होना ये एक ही दिन में नहीं होता है. इट्स नॉट पॉसिबल टू हैपन इन वन डे. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. अपने आप को खुद के साथ स्टैंड अलोन करना पड़ता है कि आई स्टैंड बाय माई सेल्फ टाइप का एटीट्यूड के साथ खुद को हील करना पड़ता है. एंड एट दैट टाइम एज ए डिफेंस यू योर सेल्फ चूज़ दैट कि मैं इतना फट से कोई नया कनेक्शन या नया रिलेशन, नया लव में मैं फट से मैं अभी अट्रैक्ट नहीं होने वाली हूँ जब तक चीज़ें मेरे सामने क्लियर नहीं हो जाए, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाए. ट्रांसपेरेंसी मुझे भी बहुत ज़रूरी है. मैं क्योंकि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मेरी एनर्जी मैं रिजर्व करना चाहती हूँ मेरी खुद के लिए. सो आई नीड टू हैव अ ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्राउंड वाइल आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू कनेक्शन. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप अपना खुद गार्ड बने हुए हो कि मैं बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आने वाली हूँ. या तो फिर ऐसा है कि आप किसी ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो इतना भी आपको पसंद नहीं आ रहा हो. एक तो आप मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हो आपके पास्ट सिचुएशन से, और अभी आपके सामने जो नया कनेक्शंस आ रहे हैं, समवेयर you don't feel like magnetic towards this person because that person may have some controlling nature. all right, या तो फिर कुछ मैनिपुलेशन कर रहे जैसे आपको फील आती है, कुछ कंपटीशन या कुछ जेलसी है आपके साथ, येट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. आपको कुछ ऐसा वाइब आता है ये जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी है, तो हो सकता है इसलिए यू डोंट फील मैग्नेटिक टुवर्ड्स दिस पर्सन. आप फिर से इस मैनिपुलेशन में नहीं फंसने वाले हो बिकॉज यू हैव हैड योर ओन लेसन्स एंड नाउ यू आर योर ओन गार्ड. आप अपने आप को गाइड करोगे और खुद को आप गार्ड करोगे कि मैं इतना जल्दी किसी को मौका नहीं दूंगी मुझे फिर से मैनिपुलेट करने का. दैट्स वाई मे बी यू आर नॉट फीलिंग टू मच अबाउट दिस कनेक्शन. ओके,
That's why you do not have the most security about this person, and it is not your fault. इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आप किसी पर्सन को लेकर आप कंप्लीट सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, एंड इट्स अ गुड थिंग कि जब तक आपको किसी इंसान को लेकर सिक्योर फील नहीं होता, देन व्हाई वुड यू मूव टूवर्ड्स दैट पर्सन। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको फुल इंसाइट्स मिले, उसके बाद आप सोचोगे समझोगे कि ये पर्सन सही है कि नहीं। एंड इफ़ यू आर फीलिंग दैट एनर्जी कि नहीं, शायद ये बंदा या बंदी जो भी है शायद मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं वो मेरे से इनर कुछ कंपटीशन में है, या तो फिर कंट्रोलिंग नेचर की है, तो शायद इस इंसान मेरे लिए सही नहीं होगा, ऐसा आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी आ रखी होगी। ओके, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कनेक्शन, बिकॉज योर पास्ट वॉन्ट्स, और अभी का जो कनेक्शन है जो आपको फुल इंसाइट्स नहीं मिल रहा है, दैट्स यू आर इन ए कन्फ्यूजन स्टेट, यू आर इन ए इनडिसीजन स्टेट कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। एक साइड है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरे साइड एक इंसान है, एक पर्सन है जो आपको फुल्ली सिक्योरिटी फील नहीं करा रहे हैं। तो आप एक इनडिसीजन में हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। एंड दिस होल सिनारियो आई विल बी टेकिंग टू दिस कार्ड, दिस इज़ द फाइनल मेजर अरकाना। सो यहाँ पे जो जवाब होगा उसी को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, एंड विल रीच टू अ फाइनल मैसेज। द हैंग्ड मैन। ओके, जो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बोलूँगी वही चीज़ एज ए मैसेज भी आया है। द मैसेज इज़ दैट इफ़ यू आर इन अ कन्फ्यूजन स्टेट, अगर आप अभी कन्फ्यूज्ड हो इस रिलेशन को लेके, या आपकी जो भी सिचुएशन अभी तक मैंने एक्सप्लेन करी, सो द guidance towards you is that it's better to take some time, have your own time and take a decision. जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली हैव टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। चॉइस आपके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी यहीं पे बस ख़त्म नहीं हो जाती। ओके, समटाइम्स इनफैक्ट आप वेट करना ही सबसे बड़ा आंसर होता है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है कि आप वेट करो, और जो सामने वाले इंसान को लेकर आप कंफ्यूज हो वो अपने आप अपना रंग दिखा दे, जिसके बाद आपको खुद से उसका जवाब मिल जाएगा। यू विल कम टू एन डिसीजन। सो दैट इज़ अ मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। आपके लिए अभी ज़रूरी है कि आपका जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा हो सकता है वो हार्ट ब्रेक हो, या आप अभी जो भी सिचुएशन में हो पास्ट कनेक्शन से, वहाँ पे आपको तो कुछ ना कुछ सीख मिला होगा, एंड दैट्स वाई यू आर ऑलरेडी यूजिंग योर दोज स्किल्स लेसन्स while trying to read about this new connection. तो इट्स बेटर टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आप पास्ट में जो जो हुआ था उसको एक बार रिवाइंड करो, कि अगर हार्ट ब्रेक भी हुआ था क्यों हुआ था, जब जब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो देन हाउ आर यू मूविंग ऑन। ऑल राइट, चीज़ें लेटिंग गो करने से सही रहेगा या कंट्रोल करने से सही रहेगा, यू ऑलरेडी हैविंग दैट इनसाइड विद यू। सो ये सब चीज़ों को ही दिलो दिमाग में रख के यू नीड टू डिसाइड। एंड फ्रॉम दिस सिचुएशन यू विल gather a very new experience, or I would say you will gather a very new lesson, जिसको बोलता है पेशेंस। पेशेंस ये हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। ये दिस इज़ नॉट ए बाय बॉर्न कैरेक्टर, कि आपके पास बहुत सारे सिचुएशंस है, आप बहुत कुछ देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन लो, या आपके दिमाग ही आपको बोल रहे हो, आपकी माइंड आपको बोल रहा है कि डिसीजन ले लूँ क्या, बट समटाइम्स नॉट टेकिंग एनी डिसीजन इज ऑल्सो ए डिसीजन। All right, sometimes simply sit there and observe things and give time to yourself, wait for the right moment is the actual solution, is the actual decision, I would say. और यही चीज़ें प्रैक्टिस कर करके आपके में वो पेशेंस डेवलप होंगे, जो एक स्पिरिचुअल लेसन भी बोला जाता है, क्योंकि पेशेंस डेवलप ऐसे ही नहीं होते, लोगों को बहुत चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन से जाना पड़ता है, उसके बाद जाके इंसान वो पेशेंस लेवल पे आते हैं। सो
व्हाट इज़ द न्यू मैसेज कमिंग इन योर लव लाइफ इज़ दैट कि आपकी जो लव पाथ है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग थिंग्स क्विकली। ओके, कि आपके लिए न्यू मैसेज यही है कि चीज़ें रश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट्स अबाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, कि खुद पे ध्यान दो, पहले खुद काबिल बनो, खुद पहले मूव ऑन हो जाओ, अपने हार्ट ब्रेक से हील हो जाओ। आपकी अगर कोई ग्रीफ है उसको हटा लो। उसके बाद जो भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे उस इंसान की फुल इंसाइट्स ले लो। अगर आपको वो इंसान कई एंगल से, अगर कोई भी चीज़ों से अगर सही नहीं लग रहा, मेनली अगर कोई भी पर्सन आपके ज़िंदगी में आते हैं, अगर वो कंट्रोलिंग नेचर का हो या कम्पिटिटिव माइंड की हो, देन इट्स बेटर फॉर यू टू स्टे अवे। रश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होते हुए आपको दिखेंगे, एंड देन you will have this inner transformation of having patience and wait patiently for the right moments to bring people to you in your life, the right people to in your life. It's a suggestion is that आपको कुछ टाइम के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यू डोंट नीड टू रश इन टू एनी कनेक्शन इन रिलेशन, या यू कैन टॉक। देखिए, बात करोगे, बातचीत करोगे तो ही तो एक इंसान के अंदर की बातों को जान पाओगे, उनकी माइंड को आप रीड कर पाओगे। सो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट आप कंप्लीटली आइसोलेट हो जाओ, बात ही ना करो किसी से। यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू इंटरेक्ट विथ पीपल। उनको जानो, जानने के बाद अब हमेशा यही देखो कि ज़रूरी थोड़ी है मैं बात करूँ इसलिए इस इंसान के साथ रिलेशनशिप पे चले जाऊँ, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ओनली हैव कन्वर्सेशंस एंड देन वेट the persons will themselves unfold in front of you. You will then can read those persons like a book, and then you can finally decide. ये completely आपके हाथ में है। You are not giving control to anybody. All right? आप आपकी गाइड हो, आप आपकी खुद की गाइड हो। आपके पास पास्ट लेसन्स है, उन पे फोकस करो, उनसे सीखो और उन्हीं को आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में यूज़ करके लोगों को समझो। एंड देन आप ध्यान रखो, आपकी रश करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर फीलिंग गुड जस्ट बाय विथ योर सेल्फ, देन वही आप कंटिन्यू करो। जब राइट टाइम आएगा, व्हेन यू फील लाइक दैट आई एम रेडी टू वेलकम समवन इन माई लाइफ, देन ओनली यू कैन वेलकम। सो आई फील द शॉर्टेस्ट मैसेज आई कुड गिव इज़ दैट आपके लिए यही गाइडेंस है कि सिंपली बात करो लोगों से, डोंट गेट कमिटेड टू एनी पर्सन। वही मैसेज है आपके लिए, फुल एंड फाइनल मैसेज। ऑलराइट, so I think that was a reading for pile number 2. If it resonated with you, then do let me know in comment section, and if it does not resonate, then please do not claim this energy, ignore this message. Also, I do personal readings. I have provided my official email ID and WhatsApp number. You can contact me on there to get a personal reading. So thank you once again for coming to my channel. See you in my next video. Thank you. Hello, pile number 3. So I haven't seen this card. I'll be unfolding this card at the end of your reading. So before that, I'm going to shuffle the minor arcana in front of you. I'll be shuffling the cards in the video. I will not cut the shuffling part. If you want, you can skip this part. Okay, so what's new message coming in pile number 3's love life? Give me answers. All right, we got three cards here. Okay, King of Swords, logical, discipline, truths. Okay, nice card. Then Ten of Swords, again sword energy. Some kind of betrayal I have been witnessing. डिसिप्लिन है इंसान, लॉजिकल है, लेकिन कुछ betrayal I am seeing. Let me confirm once more. Page of Wands,
curious, eager. Okay, okay. All right, and one more card. I need one or two card to get the full message. I got two cards. All right, so one is Ace of Wands. Okay, and the last one is Ten of Wands. So there are a lot of sword energy and wand energy. One side represents passion, energy, action, and the another one represents mind, thought. So मन में भी कुछ चल रहे हैं और उसी हिसाब से आप एक्शन ओरिएंट भी होने वाले हो या होने वाला है, जो भी है आज अभी हम देखते हैं आगे. ओके, I feel this card usually represents clear thinking, logic, and truth. So ये energy represents cutting through the illusions and face the facts in love. Okay, हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशंस से ज़्यादा वैल्यू देते हैं ऑनेस्टी को, क्योंकि जो इंसान इमोशनली सोच लिया हो सकता है उनके कई डिसीजंस गलत हो. तो इसलिए इस पर्सन के लिए जब कुछ चीज़ें समझनी होती है, व्हेन दे नीड टू फैक्ट चेक, देन वो खुद को इमोशन से डिटैच कर लेते हैं एंड दे लुक अपन द blunt facts. They do not fall for the illusion. Okay, उन लोगों को ऑनेस्टी पसंद है, ट्रूथ रहना पसंद है, ट्रूथफुलनेस है बहुत, और दैट्स वाई वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कट ऑफ करके लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान दे पाते हैं, लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं. इवन इफ इट्स इन लव, दे कैन थिंक लॉजिकली वाइल टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड. आई फील ये ऐसा इसलिए है क्योंकि समथिंग इन द लव लाइफ और इन द साइकिल ऑफ लव पैटर्न्स, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो अपने साइड से बहुत दे चुके थे. होता है ना एक रिलेशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एवरीथिंग छोड़ छाड़ के उस रिलेशनशिप के पीछे ही पड़ गए थे, उन्हीं रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे थे, एंड इट फेल्ट लाइक यू हैव लॉस्ट ऑल योर सेल्फ एस्टीम. सो इस टाइप का कुछ उनके पास्ट में हुए होंगे, जिसके वजह से उनको एक पेनफुल लेसन मिला है अपने पास्ट से, जिसकी वजह से उनका वो लॉजिकल माइंड डेवलप हुआ है कि सिर्फ प्यार ही नहीं देख सकता, प्यार भी होता है तो भी लॉजिकली दिमाग को एक्टिव रखना ज़रूरी होता है. इस टाइप का कुछ एक सिचुएशन इस पर्सन के ज़िंदगी में हुआ होगा. ओके, एंड अभी मुझे लग रहा है कि ये उनकी जो पास्ट सिचुएशन है उसके बाद अभी वो एक नए कनेक्शन को देख पा रहे. हो सकता है यू आर मे बी द न्यू कनेक्शन टू दिस पर्सन. भले it is not completely a full blown love story, but there is some spark between you two guys and it has been starting recently. ये बहुत नया एक सिनारियो हुआ है कि ज़िंदगी में फिर से एक्साइटमेंट लौटा है इस पर्सन के ज़िंदगी में, कुछ क्यूरियोसिटी फिर से जगे है उनके मन में, थोड़ा सा प्लेफुलनेस उनको फील हो रही है इस नए कनेक्शन के वजह से. या फिर अभी तक मैंने जो बोली वो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, जो आप अपने आप को बहुत गार्ड करके रखे हुए हो कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था इसीलिए अब मुझे चीज़ें लॉजिकली देखनी है. हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में नया एक्साइटमेंट लेके आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो. ओके, जो भी है ये पर्सन, आप हो या वो दूसरा इंसान हो, जो भी हो, आई जस्ट फील लाइक कि पहले कुछ चीज़ें हो चुकी है पास्ट रिलेशंस पे
और अभी जो है ये एक न्यू कनेक्शन है विच इज़ ग्रोइंग वेरी स्लोली वेरी स्टेडीली। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि एकदम एक ही बार में मतलब मिल गए फिर बातचीत होना शुरू हो गई, एकदम फुल ब्लोन लव स्टोरी शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। जस्ट अ स्मॉल जेस्चर इज़ इनफ। हो सकता है एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा कॉल, दैट्स एनफ राइट नाउ गोइंग ऑन इन बिटवीन दिस टू पर्सन। अब नया कली खिली है बोला जाए तो, एक नई शुरुआत हो रही है, बस जस्ट बडिंग हुआ है, बस शुरुआत हुई है, जस्ट अभी अभी बस वो कली निकली है। एंड नथिंग, बहुत कुछ ऐसा एकदम बूम वाला कुछ नहीं हुआ है, स्लोली इट स्टार्टिंग एंड विच इज़ अ गुड पार्ट आई थिंक। क्योंकि जो चीज़ें बहुत जल्दी शुरू होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अगर कुछ शुरुआत हुई हो भी रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इट्स ए गुड थिंग। और अच्छे चीज़ें हमेशा धीरे ही होते हैं। बोलते हैं ना, जो पेड़ पौधे बाद में जाके बहुत बड़ा होता है उनको ग्रो होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जो पेड़ पौधे हमको फल देते हैं वो पेड़ पौधा काफ़ी वक्त लेते हैं मैच्योर होने में। ऐसा नहीं कि बस आज ही आप उसे उगाए थे और कल तक अपना फल दे के मर गया, ऐसा नहीं है। वो टाइम लेगा, 6 महीना 1 साल टाइम लेगा, उसके बाद वो अपना फल देंगे और वो 15 साल 20 साल तक जिंदा रहते हैं वो पेड़। तो इसीलिए बोला जाता है जो स्टीडीली शुरू होता है, जो स्टीडीली ग्रो होता है, विथ दैट मीन्स अ स्टेबिलिटी, अ स्टेबल काइंड ऑफ समथिंग, लाइक इट्स रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी। ओके। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेनली बिकॉज आप में से किसी एक को लगता है कि दिस पर्सन फील्स गुड बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक थिंग्स इन टू हैंड्स। ऐसा कुछ आप में से किसी को फील हो सकता है कि बहुत सही है, अभी जो शुरुआत हो रही है काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद फिर से कुछ नयापन फील हो रहा है, कुछ नया एक्साइटमेंट ज़िंदगी में आ रहा है, बट आई शुड बी टेकिंग थिंग्स वेरी स्लोली स्टीडीली, सोच के समझ के लॉजिकली देख के इमोशन पे ना बह के अगर मैं आगे बढ़ूँ, भले वो टाइम ले ले, लेकिन अपने पास इंसाइट्स रख के ही अगर मैं आगे बढ़ूँ, देन इट विल बी ए स्टेबल कनेक्शन। ओके। तो जिसके वजह से काफ़ी स्लोली ही आगे बढ़ रहे हैं ये कनेक्शन में। और एज आई हैव सेड कि हो सकता है चीज़ें डिले होना ही शायद सही हो। ओके। शायद डिज़ायर तो है लेकिन अभी उन पे ज़्यादा एक्ट नहीं करना ही सही हो, बिकॉज द टाइम ऑल्सो मैटर्स। कभी कभी क्या है कि सही वक्त पे सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो वक्त अभी सही नहीं हो, जिसके लिए सही वक्त का इंतज़ार करके चीज़ें आगे बढ़ाओ, वही सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि एट द लास्ट अगर ये वैल्यूएबल कनेक्शन है, इफ़ दैट पर्सन वांट्स टू कीप यू और इफ़ यू आर द पर्सन हु वांट्स टू कीप दैट पर्सन, देन आपको सही में अपनी वक्त का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे माइंड स्टेट में हो, वो पर्सन कैसे माइंड स्टेट में है, क्या क्या चल रहे हैं दोनों की ज़िंदगियों में, उसके हिसाब से ये सब सेंसिटिव बातें, लव टॉपिक, अपने दिल की बातें बताना, एक टाइम का वेट करना ही सबसे बेहतर माना जाता है। और ये जो अभी फील कर रहे हैं आप में से, जो भी कनेक्शन में ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि स्पार्क तो है लेकिन मैं कुछ एक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, तो ये अगर सोच मन में आ भी रहा है, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। यू डू नॉट टेक द बर्डन ऑफ लव। आपको किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे के रखे है कि तुम्हें ही आगे बढ़ के तुम्हें ही कन्फेस करना है, तुम्हें ही रिलेशन को आगे बढ़ाना है। यू डू नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। The universe wants you to stop taking on what isn't yours. All right. The universe is always by your side. अगर चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वो अपने आप हट जाएंगे, और अगर आपके लिए है वो खुद ब खुद आएंगे। आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यू जस्ट बीइंग ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक बार आप बोल रही हूँ, एक बार द पर्सन बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस अ मिक्स सिग्नल। हो सकता है वो पर्सन ऐसा फील कर रहे हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो। दैट्स वाई आई एम कीपिंग दिस आइदर आप और द पर्सन, ओके। लेकिन जो भी है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि न्यू लव लाइफ को लेके क्या न्यू मैसेज है आ रहा है, सो मे बी दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आगे बढ़ के कन्फेस करना है या रिलेशन को और एक आगे लेके जाना है। जहाँ तक अभी है कनेक्शन, जो स्पार्क महसूस हो रहा है उसी को एंजॉय करो, लेट इट बी, गो विद द फ्लो। जो लग रहा है वही करो। मज़ा आ रहा है ना बात करके, उसी में अरे अरे हो। फिर वो बात करने के स्टेज को अपग्रेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, वो दूसरा पर्सन समझ लेगा। जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। आप बहुत बर्डन ले चुके हो पहले, मुझे लगता है वो जो हार्ट ब्रेक पर्सन है ना वो आप ही थे, ओके। क्योंकि हियर आई एम सीइंग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हियर आई एम सीइंग 10 ऑफ वंस, क्योंकि जो हुआ था बहुत बहुत ज़्यादा ही रिलेशन पे आप कर चुके थे, जो मैं पहले बताई थी कि बहुत कर चुके रिलेशन पे, बहुत अपना सेल्फ एस्टीम गिरा चुके हैं। मुझे लगता है वो पर्सन आप ही थे आपकी पास्ट कनेक्शन में, और जिसके वजह से आपका इनर आई खुल गया, थर्ड आई खुल गया। आप लॉजिकली आप चीज़ें देख रहे हो, ओके। एंड इस दैट्स वाई यू आर नॉट रशिंग इनटू दिस न्यू कनेक्शन, दो यू मे feel a flicker in this connection, excitement है। एंड दिस इज़ अ मैसेज, दिस इज़ अ गाइडेंस टूवर्ड्स यू कि सही सोच रहे हो आप। आपको चीज़ें नेक्स्ट स्टेज में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव योर टाइम, एन्जॉय करो बस अभी। डोंट टेक इट पर्सनली, कीप इट लाइटली, ओके। आपके लिए वो मैसेज आ रहा है कि काफ़ी आप सह चुके हो, काफ़ी आप गिरे पड़े तक आप कर चुके हो। This is now time for you, have some delight for yourself. The universe wants you to be free from all responsibilities. आपको कितना burdens लेंगे, तो you need some rest, you need some freedom, and वो आपको मिल रहा है अभी। आपको जो मन चाहे वो फील करने का, you can feel it right now, okay. So let me look at the final message from this card. Justice. Yes, that's what I was looking for. Now it's time for you to get back what you have lost. आपने जितना किया था, आपकी कर्म की फल मिलने वाला है आपको। आपने एक टाइम पे बहुत किया है, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके लिए करेंगे। That's the message for you. Now you sit and enjoy, you will be served, okay. अभी आपका माइंड इतना क्लियर हो चुका है ये पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, सो यू विल वेरी इजीली फाइंड आउट हु इज़ ट्रू पर्सन इन योर लाइफ, हु इज़ ट्राइंग टू प्ले विथ योर लाइफ। आपको ट्रूथ ऑनेस्ट पर्सन खुद अपने आप दिख जाएगा। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आप कोई इल्यूजन में नहीं फंसोगे, बिकॉज ऑल दोस लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट। You will see who is genuine and who isn't, okay. आपको तकलीफ़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जब हम कुछ नया सीखते हैं तभी बस तकलीफ़ होती है। एक बार सीख के उसके बाद हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। दैट्स वाई आई वाज गेटिंग दिस मैसेज अगेन एंड अगेन कि आपका बहुत बर्डन था, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। बर्डन आप ले चुके हो, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज द जस्टिस इज़ कमिंग इन न्यू वे, एंड दिस जस्टिस requires making a choice based on wisdom, not fantasy। जो आप खुद ऑलरेडी कर रहे हो कि आप अभी कोई पैशन में जाके आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, यू आर बीइंग कम्प्लीटली लॉजिकल। आप अपने इमोशंस को डिटैच कर चुके हो, इमोशन को डिटैच करके ही आप अभी डिसीजंस लेते हो। आपका जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो आपको लेसन्स मिले हुए, उसी के बेस पे आप अभी डिसीजन लेते हो। द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग टूवर्ड्स रिलेशन बट अलाइंस विथ योर वैल्यूज़, कि ऐसा नहीं कि तुम रिलेशन में मत आओ, इसलिए देयर इज़ अ न्यू कनेक्शन इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कोई आए,
बट एट द सेम टाइम कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता आपकी ज़िंदगी में। ओके, आप आप डिज़र्व करते हो एक अच्छा कनेक्शन, आपकी वैल्यूज़ के साथ, आपकी फ़िलॉसफी के साथ, आपकी ज़िंदगी की जो हाई वैल्यूज़ आपने गेन करी है उसके साथ अलाइन होने लायक अगर कोई पार्टनर है आएंगे आपकी ज़िंदगी में, तो ही यू नीड टू स्टेप अप विद दैट पर्सन। आपने जितना मेहनत करी है पास्ट में, दैट विल रिटर्न टू यू। कि आपको लगता होगा ना कि यार मैंने इतना किया मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो टेक इट एज आपने जो भी किया था अब वही सब चीज़ें आपको वापस आएंगी। आई एम नॉट सेइंग वो पास्ट कनेक्शन लौट आएगा। ऐसा कभी कभी होता है कि यू हैव बीन इन ए टॉक्सिक रिलेशंस प्रीवियसली एंड यू हैव मूव्ड ऑन एंड फाइनली यू हैव मेट समवन न्यू very casually. You didn't even think about that this person is going to be a very valuable person in your life, or this new person gives you all the love that you deserved. आपने उतना ही प्यार पाने के लिए पुराने रिश्तों में बहुत काम किए हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में जो नया पर्सन आते हैं वो लेके आते हैं एक नई ज़िंदगी आपके लिए एज ए गिफ्ट, कि आपने पास्ट में अपना कर्म कर दिया, उसका जो स्वीट फल मिलने वाला है वो नया पर्सन लेके आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट कनेक्शन था उसी को ही रियलाइजेशन हो गया और वो आ गए। हो सकता है, वो भी हो सकता है सिचुएशन बेस्ड, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हट जाने से बाद ही उनको रियलाइज़ होता है। रियलाइज़ होने के बाद खुद को सुधार के आपके पास वापस आके आपने जितना दिया था आपको भी आके उतना देंगे। बट द सेकेंड सिनारियो इज़ दैट, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये एक दूसरा कनेक्शन था जहाँ पे आपने बहुत कुछ दिया था। नाउ समबडी न्यू इज़ अपीयरिंग इन योर लाइफ एंड इट इज़ स्टार्टिंग वेरी कैजुअली, एंड नाउ इट्स टाइम कि आपने जितना वो पास में दिया था वो आपको अभी फिर से मिलने वाले हैं किसी और से। देन यू विल अंडरस्टैंड कि दैट यूनिवर्स हैज़ फाइनली गिफ्टेड मी। मैं जो डिजर्व करती थी वो मुझे यूनिवर्स ने दिया। यू विल बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स बिकॉज यूनिवर्स इज़ बाय योर साइड, बिकॉज द यूनिवर्स हैज सीन व्हाट यू हैव done or what you have given in your past. So this is the message कि sit quietly and take a delight, enjoy the new connection. Now it's time for you to get back what you have lost. Now it's time for you to receive the gifts for your hard work. Okay, आपने जितना दिया था अब आपको वही सब वापस मिलने वाला है। यू डोंट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस न्यू कनेक्शन। आप बस चिल करो, आप एन्जॉय करो, जो हो रहा है उसी फ्लो में आप एन्जॉय करते रहो। जो भी आगे होगा वो दूसरा वाला इंसान जाने, आपको इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव योर ओन स्नैक एंड एन्जॉय because the justice will be served to you. So this is the final message for file number 3. So do let me know if it resonates with you in the comment section. If it does not resonate, then please do not claim this energy, completely ignore this message. Also, I do personal readings. You can check out my description box for WhatsApp number and my official email ID. And once again, thank you so much for coming into my channel. See you in my next video. Thank you.